A very good morning to all of you and a warm welcome to the 13th session of our esteemed webinar series 24 in 2024, a series by Whiteboard Education and Research Foundation in association with Deltron Technologies. It's an absolute pleasure to have you all joined us today as we continue our journey of bridging the gap between corporate and education. Once again, we are back with our enriching session, and this is your host, Dipanshi. In today's competitive job market, mastering the art of interview is one more important than ever. Whether you are just starting out in your career or looking to advance to the next level, knowing how to effectively communicate your skill and experiences is the key. In today's session, we will cover a range of topics designed to boost your confidence and help you make a great impression. Today, we have the privilege of hearing from an esteemed leader in the human resource industry featuring Ms. Gunjit Trihan, HR Manager at Tyron Orthotics Private Limited. Ms. Gunjit Trihan is a seasoned HR professional with vast experience in talent acquisition and management. As the HR manager at Tyrone Orthotics Private Limited, she has a keen eye for identifying top talent and understand what make candidates stand out. Her insights will be invaluable for anyone looking to excel in their job interview. Without further ado, please join me in welcoming Ms. Gunjit Trihan. Before we start, I would like to tell the audience that their mics are muted. So if anyone is having any query or question, they can ask in the chat box. In the last 15 minutes, we'll be having a Q&A session where your questions will be answered. Now, the virtual stage is all yours, ma'am. Thank you, Dipanshi, for that introduction. Good morning, everyone. I hope you can see me and hear me clearly. Yes, ma'am, you're visible and audible. Wonderful. Thank you. So, thank you for joining today for this really great session on a Saturday morning. The art of interviewing, right? So, this is something that most of us would have either gone through in our recent past or are preparing or planning to go for in the near future, right? Very, very practical example that impacts and affects each one of us, irrespective of if we are a fresher, just out of college, undergraduate, postgraduate, whatever, or we've been in the industry for some time. So there are certain tips and tricks to keep in mind to ensure that our readiness for that interview is up to the maximum, and we're able to crack that interview, right? So a lot depends on how well we are prepared, right? And there are some tips and tricks which we have to keep in mind before we are ready for that day. So what I'll try to do is share some slides with you where you can make some notes, right? Have a paper and a pen right with you where you can take down the notes that you may want. And I would like to share my screen. Can you allow me to do that? I'm not able to share it. Can somebody from the admin team look at that? Yes, ma'am. I'll just have sent it a message to the admin. They'll give you the access to share the. Yes, please. That will be great. Ma'am, you can just check it out again. The access bin has given to you.
I'm still not able to do that. Can I maybe send this presentation to someone and if they could share the screen? But Yeah, that let me will. know. Ma'am, you are the presenter of the meeting, so the access has been only given to you. So I think you can share now. It would be great if you check it out. I am trying to do, it's not allowing me still. I think there's some error. Maybe I'll try to rejoin. Yeah, give me a minute. Yeah, it would be no Yeah. issues. Ma'am, I have dropped the message to give you the access of my cam. Share.
Sorry for the inconvenience, everyone, but you just have to wait for a minute. We are resolving the issue. My screen visible now? Yeah, it's visible, ma'am. Sorry for the technical glitch. I think that's the not so great part about meeting remotely, right? But anyway, Mhm. again, good morning to everybody who's joined on this bright Saturday morning to understand how can we crack the code to master the art of interviewing, right? चाहे हम fresher हैं or we are experienced, everybody goes through this process of interviewing to land our dream job, right? And there are certain tips and tricks that one may want to keep in mind before approaching that interview. And that's what we'll be covering today. So, very brief, short and crisp agenda that I have for you. And then towards the later end of this discussion, we'll also take your questions, and that's where I want to focus more, right? So, if you have any doubts or questions in your mind from your previous experiences, we can cater to that. So, if the organizers allow, you can put your questions in the chat as we go by. The next 15-20 minutes are going to look like this, right? Number one, I'll be covering certain preparation tips for you, how you can prepare well for the interview that you're preparing for or you're going to give in the next near future. Then, what are some of the tips and tricks to keep in mind before the interview, during the interview, and how do you close after the interview, right? So, these are three different stages which needs different way of preparation and presenting yourself in front of the interviewer or the company. So, we learn about that. We'll understand how we close the loop, right? After a day or two that the interview is done and you've still not heard about any update, how do we do that, right? And finally, we'll take your questions and answers. So, this is the brief agenda that I have for you for the next 15-20 minutes. Now, before we go ahead, think about what is the secret to success or the code to success, if you will. Whenever in the recent past you've done something and that has been successful, what was that one major ingredient that brought success to you? If you think about it, there's one word, there's one common theme towards success, and that is confidence, right? Having confidence in doing something is more likely to bring you success in that endeavor that you have. But it's easier said than done. बोल दिया कि confidence रख लो, it's not that easy, right? You have to have certain stages of preparation to make you that confident self towards the end. Confidence is an end result of certain preparations that you would have done beforehand. Now, how do you feel more confident, right? What is the recipe for confidence? Again, not a one ingredient recipe that ये एक चीज कर लो तो आप confident हो जाओगे. No, that's not how it works. There are different recipes and different ingredients to this story of success. Number one is preparation. Preparation includes what all you have to keep in mind before the day of your interview. Let's say if your interview is on 10th of July, what you have to do a day or two before that day. So we'll cover those things, right? So preparation is the first and foremost thing to be done to make you more confident and to bring you success in that interview. Next is communication. Now these things are to be kept in mind on the day of interview, right? The D day, right? Finally, how we close loop. This is the last leg of showing to the interviewer or to that company how confident you are and how eager you are and interested you are to join that organization. Right? So, this is going to be a last tick mark in your journey to get that dream job that you've been waiting for. Right? So, these are the three stages of building confidence, of leading you to a successful endeavor of giving a great interview. Right? First things first, preparation. Now you see that I've written at least D minus 1, which means, like I said, if your interview is on 10th of July, you have to do these things at least on 8th or 9th of July and absolutely not on the day of your interview, right? If you do these things on the day of your interview, then it's not going to lead good results, trust me, right? So start kaise karni hai preparation. First things first, know about yourself, right? That's what you see on the left end of your screen. Know your profile, your projects, your key achievements, right? Now this is possible if you have had certain experience in your mind. If you've had, let's say, 2-3 years of experience in the past, then it is important to know what are some of the key projects and achievements that you've done in the recent past,
right? Ensure that what you have written in your resume is something that you're aware of. Don't write anything that you're not aware on, that which is there on your resume, right? The interview will pick up that point and then probe you on those questions, and then you land up in a soup, right? So ensure that your resume is up to date, right? Go through your previous high impact experiences, highlight them well in your resume. Now, writing your resume well is also very important, right? And that's a different chapter altogether. But first things first, your profile should be on your tips, right? What are your key strengths? What are your weaknesses? These are especially the questions that are asked to people who are freshers or who are coming fresh out of college and don't have too much of work experience, right? So knowing what your profile, at times they also ask you about your background. So prepare this question very well, right? The very common question that is asked is, tell me something about yourself. And this is how the interview starts, is the very first question. And if you're able to land this question well, the rest of the interview is in your hands. You can tell the interviewer about those things which you want the interviewer to further probe you on, and that is only possible if you're able to present your profile well, if you're able to talk about who you are well, what your key achievements are, what you have studied, etc., right? That's about knowing your profile and knowing your resume absolutely well and on your tips. Once this is done, the next thing to know in detail is the company that you're interviewing for, what that company is about, what industry are they into, what are the recent updates and the news that they may have been, right, in the recent past. Now, these things will also give you an edge over other candidates, that you have well read about the company, you have well read about the job that you are also interviewing for. It is important to know the job description, the roles and responsibilities of that job, so that you're not caught unaware, right? If you don't know what job you're interviewing for, it's not going to give a very good picture to the interviewer, right? So know about the company details, know about the values of that organization, because as senior roles that you keep applying for, whether it's a senior role or a mid-level role, even for that matter for a fresher role, knowing the values of that organization and connecting these company values with your own personal values is going to give you a very good impression for the interviewer to make it a very positive impact, right? So know about the values, know about what the company is, and relate it to your own journey, right? Understand what the latest updates of those companies are. If the company has been in news for certain reason, you should know about it, and you should be able to present that in the interview, right? That I know that XYZ company was in news for this great reason. And then you may also want to present your thought on this particular update that you will talk about. So have some judgment, have some version of your own, if this was a good step or a bad step for the company to take, right? And this is only possible if you have well read. So read your newspapers well, uh, Google search the company well on the internet to know what the latest key updates are. Now, once you've read about the company, about the business and the industry, go through who the key people and key leadership of that company is, right? Again, this will give a very good impression and give you an edge over other candidates if you know who the key people of that company is, right? You should be able to tell how well read you are and how you well researched about the key people and the key leadership of that company. Last but not the least, know who the interviewer is. Look them up on LinkedIn, look them up on Google, and you should know certain things. Let's say which college they're from, what are some of the companies that they work for, or if there are any projects that they have done. Right? Again, this is going to give a very good impression to the interviewer that you've done a very, very good research and a thorough research, and you're very well prepared for that interview. Right? So these are the three things that you must do: know your profile, know the company, and know the leadership and the interviewer, right? So make notes of these things. This has to be done a day before the interview, and this is almost 50% of giving you that confidence on the day of interview, which is going to give you a lot of success, right? And as you see the picture, well begun is half done. So well prepared is giving you almost 50-60% of that confidence that you need to crack that interview the next day, right? So this is the preparation tips before the day of interview. Next, let's talk about the D-Day. What you need to keep in mind on D-Day, what will leave a lasting impression, and what is the key to success on the day of interview.
Now, the first thing before anybody even talks to you, what they see is how you dress yourself up. What you need to do is dress to impress and have a smile on your face. This is the key to confidence on the day of your interview before even anybody talks to you, because that's the first impression that you're leaving on somebody, right? Now, these are your non-verbal cues that you're giving to the interviewer, right? Non-verbal meaning you've not spoken anything yet, you've not verbalized anything, but still you have landed a message to the interviewer and to the company, right? And that's only possible through the way you carry yourself, through the way you present yourself, and the way you dress yourself. So half the confidence you will get from the way you dress yourself up. If you dress yourself up smartly in smart formals, etc., you yourself will feel very confident, unlike if you wear some jeans or t-shirt, which is absolutely a big no on the day of the interview, right? So your clothes have to be well ironed. Choose very safe colors like whites and blues and blacks, right? Blues and blacks give a very confident feeling to the person who's interviewing you, and whites give a sense of peace and calmness to the entire discussion and the entire aura of that place. So very safe colors to play with. Wear blacks and blues and whites. Wear formal shirts. Mostly these days you may not need to wear ties unless you're into a customer facing role, or if the role per se requires you to wear a tie. Otherwise wear normal formals, and if you're going for a senior role you may want to also wear a suit, right? So dress yourself up for the role that you're interviewing for. Sorry to interrupt, Gunjeet, but it would be great if you just use some Hindi, मतलब mix करके करो, because our audience is mixed up. हाँ, Okay, तो वो अच्छा okay, होगा. They'll get to know more about that. sure. Do you want me to go to the previous screen to talk something about in Hindi there? No, you can continue from there only. ओके, ठीक है. सो ऑन द डी डे आपको बहुत स्मार्टली ड्रेसअप होना है, राइट? आपको सूट्स पहन सकते हैं अगर आप मिड टू सीनियर लेवल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर रोल्स के लिए हैं देन वेयर शर्ट्स एंड पैंट्स, राइट? टी शर्ट्स नहीं पहननी है एब्सोल्युटली, जीन्स तो बिल्कुल नहीं पहननी, और वो रिप्ड जीन्स जो हम पहनते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, एब्सोल्युटली नॉट. सो आपके इंटरव्यू के लिए भी कपड़े एक दिन पहले तैयार होने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंश्योर कि वो वेल आयर्नड है, प्रेस किए हुए हैं आपके कपड़े, ट्राउजर्स, शर्ट्स, एंड दिस गोज फॉर ऑल जेंडर्स, राइट? ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को सूट्स नहीं पहनने, ऐसा नहीं है. यू कैन ऑल्सो वेयर नाइस फॉर्मल शर्ट्स एंड पैंट्स. आप न्यूट्रल कलर्स चूज़ कीजिए. अगर समझ नहीं आ रहा है ना, अरे कौन सा शर्ट पहनूँ, कौन सा पैंट पहनूँ, चूज़ वाइट एंड ब्लू और ब्लैक, राइट? मोस्टली गो फॉर वाइट एंड ब्लू, क्योंकि उससे एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, एक जो ब्लू कलर है एक बहुत कॉन्फिडेंट कलर लगता है. कलर्स की भी एक अपनी अपनी फीलिंग और इमोशन होती है, राइट? सो वाइट एंड ब्लू पहनेंगे तो वेरी सेफ कलर. और अगर आप रिलेटिवली जूनियर रोल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोट वोट भी पहनना है, या टाई तो आजकल हार्डली कोई लगाते हैं, अनलेस आप किसी बैंकिंग में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वो कस्टमर फेसिंग रोल है या क्लाइंट फेसिंग रोल है, और उसमें द कंपनी इंसिस्ट्स दैट आप टाई पहन के आएँ, राइट? ओनली देन वेयर टाइज. अदरवाइज फॉर्मल शर्ट्स एंड पैंट्स इज इम्पॉर्टेंट. नाइस टाइडी, एब्सोल्युटली राइट. इट शुड बी वेल फिटिंग, ना बहुत खुले हो ना बहुत टाइट हो. और जब भी आप किसी से मिल रहे हैं आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, कंफर्टेबल, राइट? ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्टेयर करते रहो, उनकी आंखों में देखते ही रहो, बट एक कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बना के रखो. एटलीस्ट फॉर 5-6 सेकेंड्स उनकी जो भी इंटरव्यू है उनकी आइज़ में देखो, फिर थोड़ा सा इधर उधर देखो. जब आप किसी की आइज़ में देख के बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं, राइट? एट ऑल टाइम्स वेन एवर यूर सिटिंग, चाहे आप वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं या आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, राइट? आपकी बैक एकदम स्ट्रेट, पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल झुक के नहीं बैठना है, क्योंकि अगेन दैट्स अ नॉन वर्बल, आप बिना बोले ही एक मैसेज दे रहे हैं अगर आप झुक के बैठ रहे हैं या आप स्ट्रेट होके नहीं बैठ रहे हैं, राइट? जितना आप अप स्ट्रेट बैठेंगे आपके शोल्डर्स वाइड होंगे, आपकी बैक स्ट्रेट होगी, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी बहुत कॉन्फिडेंट निकल के आएगी, राइट? और जब भी किसी से मिल रहे हैं कंपनी में तो एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करना भी बहुत ज़रूरी है. डोंट कीप योर हैंड्स एट द बैक और समथिंग. आप स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करेंगे, उससे लगेगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और आज आप कुछ तोड़ फोड़ करके जाएंगे इंटरव्यू में, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है. क्या नहीं करना है इज़ टू सिट लाउजीली, लाइक आई सेड. ऐसे झुक के नहीं बैठना है या ऐसे एकदम आराम से खुले होके नहीं बैठना है, सीधे बैठना है और आपके हाथ आपके लेग्स पे या नियर द नीज होने चाहिए, कंफर्टेबली सामने दिखने चाहिए इंटरव्यूअर को. दैट्स अगेन
आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटिंग अप स्ट्रेट नीड्स सेंड्स अ मैसेज ऑफ स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी, कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि आप अपने हाथ दिखा रहे हैं। अगेन ये एक नॉन वर्बल क्यू है, बिना बोले आप एक मैसेज सेंड कर रहे हैं सामने वाले को, अगर आप स्ट्रेट बैठे हैं और आपके हाथ सामने वाले को दिख रहे हैं तो, राइट। और और क्या नहीं करना है, राइट। एक तो आर्म्स फोल्ड करके नहीं बैठना है, लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठना है, क्योंकि वो एक नेगेटिव मैसेज दे रहा है इंटरव्यूअर को, तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं अपने बारे में, चाहे वो इंटरव्यू है या कहीं भी और है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, कभी भी अपने आर्म्स फोल्ड करके नहीं उनको दिखाना है, राइट। आपके जो शोल्डर्स हैं वो खुले होने चाहिए और आपके हाथ सामने होने चाहिए, राइट। कपड़े बिल्कुल भी टाइट और ओवर साइज नहीं होने चाहिए, एकदम आपकी साइज की फिटिंग, नाइसली फिटिंग होनी चाहिए। टी शर्ट्स नहीं पहननी है, कोई लाउड कलर्स नहीं पहनने हैं, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता है एक इंटरव्यू में। एंड बिना बोले ही आपने चाहे जितनी अच्छी प्रेपरेशन की हो अपने बारे में, कंपनी के बारे में, वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके कपड़े और आपकी अटायर अच्छी नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके कपड़ों से और आपकी पर्सनैलिटी से ही आता है, राइट। सो टी शर्ट्स नहीं पहननी है बिल्कुल भी, जीन्स वगैरह कुछ नहीं पहनना है, बड़ी बड़ी ज्वेलरी कुछ नहीं, एकदम नाइस नीट एंड क्लीन। लाउड कलर्स नहीं पहनने हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि सेफ कलर्स हैं, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक, इस तरह के कलर्स, राइट। अगेन शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनने हैं, स्मार्ट शूज़, फॉर्मल शूज़ पहन के जाना है। चप्पल्स ऐसा कुछ नहीं पहने जिसमें आपके पैर खुले हों, राइट। सो आपके चप्पल्स या फ्लिप फ्लॉप्स, don't wear these. Wear formal shoes. Again, no sports shoes, right? You see in the picture, मैंने पिक्चर इसीलिए लगाया ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि what does formal and smart clothing for the interview day looks like, right? योर हेयर शुड बी नाइस एंड प्रॉपर, राइट। आपके मुंह पे नहीं गिरना चाहिए, फेशियल हेयर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बालों को एकदम पीछे करके रखो और खुले तरह से सामने आपने इंटरव्यूअर के सामने बैठना है, राइट। सो ये आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, बिना बोले आप बहुत कुछ कह जाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल से, और आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके बॉडी के मूवमेंट से काफ़ी कुछ आप कह जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द नॉन वर्बल क्यूज़ फॉर योर डे ऑफ इंटरव्यू। नाउ लेट्स कम टू द ड्यूरिंग ऑफ इंटरव्यू। जब आप बात कर रहे हैं, जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो किस तरह से जवाब देना है, राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक तो पंक्चुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी का मतलब, अगर 11 बजे इंटरव्यू है तो मैं 11 बजे नहीं पहुंच रही हूँ, मैं 10:45 पौने 11 पहुंच जाना चाहिए एट द डे ऑफ योर इंटरव्यू, राइट। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कई बार बहुत सारी फ्लोर्स होती हैं जहाँ पे जाना है, तो एटलीस्ट आप कंफर्टेबली ढूंढ सकते हैं कि कौन सी फ्लोर है, कौन सा रूम है, और आराम से बैठ के पानी वानी पी के शांत होकर बैठ सकते हैं, राइट। तो 11 बजे तो बिल्कुल नहीं पहुँचना है, कम से कम 15 मिनट पहले आप वेन्यू पे होने चाहिए, राइट। सो ये पंक्चुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन नॉन वर्बल क्यू, बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है कि आप कितने कितने बजे कहाँ पे पहुँच रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ लाइफ वैल्यू स्टैंड पॉइंट, राइट। कहीं भी जाइए तो दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करने के लिए, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करने के लिए टाइम से पहुँचे, 10-15 मिनट पहले पहुँचे, राइट। दूसरी चीज़ है कि कभी भी अपनी सीवी में और अपने इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो कि झूठ लगे, राइट। क्योंकि इंटरव्यूअर्स इतने इंटरव्यूज़ ले चुके होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि वो पकड़ लेते हैं कि कहाँ से आप झूठ बोल रहे हो। और जब हम झूठ बोलते हैं ना कहीं हमारे चेहरे पे आ जाता है, और इंटरव्यूअर्स समझ जाते हैं कि अच्छा जी, यहाँ पे तो कुछ दाल में कुछ काला है, राइट। तो इट इज़ बेटर कि आप सबसे जो भी बोलें सब कुछ सच बोलें। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता ना, तो बोल दीजिए कि आई डोंट नो सर, और आई डोंट नो मैम, आई विल गेट बैक टू यू, और आई विल रिसर्च अबाउट दिस एंड देन आई लेट यू नो, राइट। तो ये बोलना इज़ ओके कि मुझे नहीं पता और मैं वापस जाके इसके बारे में पढ़ूंगा ज़रूर, राइट। अगेन ये भी एक बहुत कॉन्फिडेंस बताता है। आपने सवाल का जवाब चाहे नहीं दिया, या ये बोल दिया कि मुझे पता नहीं है, तो बट मैं जाके पढ़ूंगा इसके बारे में, ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर को, राइट। और जब भी हम किसी भी चीज़ के किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप स्पेसिफिक हों, राइट। बहुत ज़्यादा हमने रामायण नहीं सुनानी है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि लंका में आग किसने लगाई, तो हम उतना ही बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि राम जी का जन्म यहाँ हुआ था, दिस एंड दैट, राइट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया। स्पेसिफिक रखना है, और आपके आंसर स्पेसिफिक तभी हो सकते हैं अगर आपने उसके बारे में प्रिपेयर किया हो पहले, राइट। आपने वो माइंड में क्वेश्चन पूछा हो कि अच्छा, अगर ये मैंने चीज़ अपने रेज्यूमे में लिखी हुई है
तो इसके बारे में मुझसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, और मैं करीबन 10 से 20 सेकंड में इस चीज़ का क्या जवाब दूंगा, राइट। तो कोई भी आंसर आप दे रहे हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड्स के लिए आपका आंसर होना चाहिए, उससे लंबा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा आप जो भी बोलेंगे ना, इंटरव्यूअर का उस पर फोकस घटता रहता है, एंड दैट्स वेरी ह्यूमन, राइट। कोई भी बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होता है, आप क्लासेस अटेंड करते हैं जो भी अपने कॉलेज में, आपको पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब लंबा चला जाता है तो यू लूज़ इंटरेस्ट, और आपको याद भी नहीं रहता क्या बोल के गए, राइट। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एकदम टू द पॉइंट बोलें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलें। और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप कैसे बोल सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा, आप में आपके एक्सपीरियंस में या आपकी लाइफ में कभी भी कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन रही है, उसके बारे में बताइए, राइट। अब वो चाहे घर पे हो सकती है या चाहे ऑफिस में हो सकती है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसके लिए एक ना मेथडोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टार मेथडोलॉजी। हाउ कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जिससे स्पेसिफिक भी लगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाएं। सो सबसे पहले है कि एक तो सवाल ध्यान से सुने हम, राइट। जैसे जैसे मैं सवाल सुन रही हूँ जो इंटरव्यूअर बोल रहा है, वैसे वैसे मैं उसका दिमाग में आंसर सोचना शुरू कर दूँ कि वो कौन सा एक इवेंट है जो मैं इनसे रिलेट कर सकती हूँ इनका जवाब देने के लिए। और दूसरा है कि जो इंटरव्यूअर है, अगर मुझे उसका सवाल का जवाब पता भी है ना, उनको सवाल पहले बोलने दें, लेट देम कंप्लीट द क्वेश्चन, डोंट जंप राइट इनटू इट, राइट। सवाल सुने, और अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ 5-10 सेकंड सोचना है उसके बारे में, तो ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी 5-10 सेकंड्स, आई वांट टू थिंक अबाउट दिस आंसर, दैट इज़ ऑल्सो ओके। एंड व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग, तो पहले वो सिचुएशन बताएंगे कि ऐसा हुआ था, ये चैलेंजिंग सिचुएशन आई थी, उसके बाद उसमें आपका क्या काम था, विच इज़ टास्क, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका आपकी सेल्स जॉब में, आपके कंपनी में जो आपके कस्टमर्स हैं वो एक कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं, दिन पर दिन आपकी सेल्स कम हो रही है क्योंकि वो कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन हो गई। अब इसमें आपके मैनेजर ने आपको टास्क दिया कि अरे भाई, ये XYZ प्रोडक्ट है, इसका तुम देखो कि क्यों इसकी सेल हमारी इतनी डिप हो रही है, क्यों कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं, राइट। तो ये आपकी टास्क हो गई। और उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? आप मार्केट में गए, आपने 100 कस्टमर्स से बात किया कि वाई आर यू मूविंग टू दी अदर ब्रांड, आपको हमारा ब्रांड क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, या आपने कोई प्रीवियस डेटा के ऊपर काम किया, राइट। दैट वॉज दी एक्शन दैट यू टुक। और उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आया? तो रिजल्ट ये निकल के आया कि हमारे नए फीचर्स जो प्रोडक्ट में आए थे वो हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, और ये हमने इनपुट्स अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को भी दी, एंड नाउ दे आर वर्किंग बेसिस द कस्टमर इनपुट्स। तो ये अच्छे से आपने आंसर अपना फ्रेम कर दिया। पहले सिचुएशन क्या थी, उसमें आपने क्या काम किया, और उसके बाद क्या एक्शन लिया, और फाइनली उसका रिजल्ट क्या था। आपके सारे आंसर्स ऐसे फ्रेम होने चाहिए, वेदर इट इज़ ऑन योर वर्क प्लेस काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट यू गिविंग, और अगर आपकी पर्सनल लाइफ का भी कोई आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो भी इसको इसी तरह से फ्रेम करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आपका ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आप मान के रखिए इस चीज़ को कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में 100% पूछा जाएगा। 100 नहीं तो 99.9%, 10 में से 9 इंटरव्यूज़ में द इंटरव्यूअर विल आस्क यू टेल मी अबाउट योर 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी लेके जाना, इस आंसर को प्रिपेयर करना अगेन ऑन बिफोर द डे ऑफ योर इंटरव्यू। उस दिन तो कोई प्रेपरेशन नहीं होगी, जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तो सिर्फ स्मार्टली ड्रेस होके जाना है और कॉन्फिडेंटली आंसर्स देने हैं हमने, राइट। आंसर्स क्या देने हैं वो एक दिन पहले प्रिपेयर करना है। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जिम जाता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। नहीं, इसके आपके काम से क्या लेना देना है? कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। स्ट्रेंथ आपकी ये हो सकती है कि मैं बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ, एक बारी काम करने बैठ गया तो 2-3 घंटे मुझे कोई उठा नहीं सकता उस काम से, ये आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। दिस कैन शो डेडिकेशन एंड योर कमिटमेंट टू वर्क। फिर वीकनेस पे आते हैं। तो आप अगर ये नहीं बोलेंगे कि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, ये मेरी वीकनेस है और मेरे पापा मुझे इसके बारे में बहुत डांटते हैं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी है इंटरव्यू में। हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस वही बतानी है जो हमारे काम पे मैटर करती है। अभी मेरी शॉपिंग मेरी वीकनेस है, इससे मेरा काम से क्या लेना देना, या मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, ये मेरी वीकनेस है तो मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, ये आपका बहुत नेगेटिव हो जाएगा, राइट। वीकनेस आपने वो बतानी है जो काम में आपके ऊपर आपको हावी पड़ सकती है या इम्पैक्ट कर सकती है,
राइट. सो ये आंसर ज़रूर प्रिपेयर करना है सबने अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये हो गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू. और जब इंटरव्यू खत्म हो गया तब अगेन गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म हैंडशेक करके जाएं, आई कांटेक्ट बना के जाएं और एक ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ जाएं, स्माइल करते हुए ऑल थ्रू द इंटरव्यू. पूरे इंटरव्यू के टाइम पे एक हल्की सी स्माइल, एक प्लेजेंट स्माइल होनी चाहिए और आपकी बैक अप स्ट्रेट एकदम होनी चाहिए. राइट. अब इंटरव्यू हो गई है, आपको 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अभी तक पता ही नहीं लगा है कि भाई क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, और आपको हो रही है अब थोड़ी सी बेचैनी कि अरे भाई क्या बनेगा. तो ऐसा नहीं कि सीधा के सीधा रिक्रूटर को फ़ोन कर लिया अगर बाई चांस आपके पास नंबर है कि अरे यार मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या बना उसका. नहीं, ऐसा नहीं करना है. ईमेल लिखिए सबसे पहले तो, या फिर एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूज़ 2, 3, 4 दिन भी चल रही हो. राइट. तो फॉलो अप अगर करना भी है तो आफ्टर 48 आवर्स करना है, या तो मैसेज करना है या ईमेल करना है. और आपने स्टार्ट भी उस ईमेल या मैसेज को कैसे करना है, पहले तो थैंक यू बोलना है कि थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर इंटरव्यूइंग मी फॉर सो एंड सो रोल, माय नेम इज़ सो एंड सो, है ना. और उसके बाद ये बोलना है कि क्या आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक, मेरी इंटरव्यू कैसे गई, आपको क्या अच्छा लगा या मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ. और उसके बाद ये पूछ लीजिए कि कैन यू ऑल्सो लेट मी नो द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू बेसिस दिस. अगर उनका फीडबैक पॉजिटिव होगा तो मोस्टली उनका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा कि हम आपको 1-2 दिन में बता रहे हैं, या आप कुछ दिन में ऑफर लेटर रोल आउट कर रहे हैं, या जो भी है, या आपकी नेक्स्ट इंटरव्यू सेटअप कर रहे हैं. राइट. तो फीडबैक ज़रूर पूछिए. अगेन ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर को कि लेट्स से अगर इस बारी किसी और को भी रख लिया तो अगली बारी के लिए हाँ ये कैंडिडेट ने मुझसे फीडबैक पूछा था तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था अपनी लर्निंग और ग्रोथ में. तो इसलिए फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी है. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैसेज और द ईमेल दैट यू आर सेंडिंग, तो उसमें आप ये वापस बोलिए और अपना इंटरेस्ट दिखाइए इंटरव्यूअर को कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में, मुझे बहुत सीखने को भी मिलेगा और मैं कंपनी को भी बहुत वैल्यू ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. राइट. ये चीज़ें हमें वापस उस मैसेज में या ईमेल में बोलनी है ताकि इंटरव्यूअर का ध्यान आपकी तरफ जाए कि इसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं मैसेज में, तो इसको एक बारी और मौका देना या इनको जवाब देना तो ज़रूरी है. राइट. इस बेसिस पे आपने अपनी पूरी इंटरव्यू की जर्नी अच्छे से क्लोज कर दी है. राइट. और अगर किसी इंटरव्यू में होता है या कई बार ऐसा होता है कि रोल के लिए हायरिंग नहीं हो रही है, किसी और को सिलेक्ट कर लिया, नथिंग इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. राइट. देयर विल बी अदर इंटरव्यूज़. तो अपनी वो प्रेपरेशन हमने हर इंटरव्यू के लिए जारी रखनी है. राइट. तो ये मेरी प्रेजेंटेशन तो इतनी ही थी, बट व्हाट आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग इज़ कि आपके कोई सवाल हैं इस प्रेजेंटेशन में, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं वापस से कुछ प्रेजेंट करूं तो वो आप मुझे बताइए एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस. या अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ के ऊपर वापस से थोड़ा बोलूं तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट एज वेल. Okay, so I got some of the questions in the group. तो हम वो डिस्कस करते हैं पहले. The first question is, how can we research a company effectively before an interview? Like if someone is going, कोई जा रहा है इंटरव्यू देने, उसको उस कंपनी के बारे में ऐसी क्या प्रायर नॉलेज या प्रायर पता होना चाहिए कि उसको he or she should not feel like a dumb person, या ऐसा नहीं शो कि हाँ इसको कुछ पता ही नहीं है कंपनी के. तो प्रैक्टिसेस है that one can opt for. एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें 2 चीज़ें हैं. सबसे पहले तो ईजिएस्ट थिंग टू डू, गूगल कर लो उस कंपनी को. राइट. XYZ कंपनी डाल दो और उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएगा. तो 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए एंड उनकी वेबसाइट पे जाओ. हाँ, आजकल हर किसी कंपनी की कोई ना कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को अच्छे से मतलब घोट के पी जाओ कि उसकी कंपनी की क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो. ये सब चीज़ें अगर आप जान लोगे और इसको थोड़ा सा याद कर लोगे, 3-4 बारी देख लो. जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो उस दिन भी रास्ते में एक बारी देखते जाओ कि हाँ ये कंपनी की ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इसके ऑफिसेज हैं, इतने ऑफिसेज हैं इतने कंट्रीज़ में. तो इट्स वेरी ईजी. आजकल इंटरनेट ने ये चीज़ बहुत ईजी बना दी है. तो एक तो गूगल रिसर्च करो, 1-2 न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लो और उनकी वेबसाइट को अच्छे से पढ़ के जाओ. Okay. The second question is, are there any question candidates should avoid asking during an interview? Like आपने भी बहुत सारे interviews लिए होंगे, and there are questions जो हम as a curiosity पूछ लेते हैं कि हाँ what will be our salary package. First interview में ही पूछ लेते हैं कुछ candidates.
तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. आपको अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना तो आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, तो क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है. एंड नो क्वेश्चन इज़ अ बैड क्वेश्चन अनलेस आप फॉर एग्जांपल जैसे दीपांशी आपने ही बोल दिया कि अच्छा मेरी सैलरी क्या होगी. ये बहुत एक डेस्परेट साउंड करता है कि इनको अभी से सैलरी की पड़ी है, इनको रोल की नहीं पड़ी है, या फिर मुझे कितनी जल्दी प्रमोशन मिलेगी. अरे अभी आ तो जाओ कंपनी में, आए नहीं हो प्रमोशन की पहले से आपको डेस्परेशन जिस भी क्वेश्चन में दिखे ना कि अरे इनको किसी भी चीज़ की बहुत जल्दबाजी है, वो क्वेश्चन हमेशा अवॉइड करना चाहिए. बट क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, राइट? कि आपकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं या आपकी कंपनी वैल्यूज़ क्या हैं. द सेफेस्ट क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं कि मुझे इस रोल में सक्सेसफुल होने के लिए या इस कंपनी में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे 3-4 क्या बिहेवियर्स या ऐसे 3-4 एट्रीब्यूट्स क्या रखने हैं जो मुझे सक्सेस दे सके. दैट्स अ वेरी सेफ क्वेश्चन टू आस्क. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन सपोज साइंस बैकग्राउंड में करे है एंड दे आर नाउ परस्यूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन से साइंस से मैनेजमेंट में स्विच करा है उन्होंने, सो हाउ विल दे जस्टिफाई दैट आंसर? बिकॉज सामने से ही बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि आपके खुद के डिसीजन मेकिंग में इतने सारे फ्लक्चुएशंस है, सो हाउ विल यू गोना मेक दैट पॉसिबल? तो उस चीज को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं? राइट. सो इंडिया में इट इज़ वेरी प्रेवलेंट एंड वेरी कॉमन कि जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी अंडर ग्रेजुएशन है, वो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स या बड़े भाई या रिश्तेदार चूज़ करते हैं कई बारी. कि मेरे ताऊ जी ने बोला कि इंजीनियरिंग ही करनी है और इंजीनियरिंग भी सीएसई में ही करनी है और कुछ नहीं करना है, राइट? दिस इज़ ओके. और अगर आप ये जवाब देते हैं इंटरव्यूअर को कि आई हैड टू डू दिस बिकॉज माई फादर आस्क्ड मी टू डू and I was not very well aware of what options I should choose in my undergraduation. ये आप बोल सकते हैं. इट इज़ ओके टू से कि मुझे उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, या मेरे फादर या मेरे किसी बड़े ने मुझे इनकरेज किया कि आप ये फील्ड लीजिए. बट जैसे जैसे मैं उस फील्ड में गया मुझे समझ में आया कि ये शायद मेरा कोर एरिया नहीं है, ये अंदर से मुझे उतना एक्साइट नहीं करता है. इसलिए अब मैनेजमेंट इज़ समथिंग दैट एक्साइट्स मी. अब मुझे लगता है कि इसमें मेरी की स्ट्रेंथ है, मैं काफ़ी कुछ इसमें अपना वैल्यू दे सकता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस फील्ड में. तो इस तरह से इस आंसर को हम मोल्ड कर सकते हैं, राइट? बट ये कभी नहीं बोलना है कि मेरा फ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड ने ये ले ली थी इसलिए मैंने ये चूज़ किया. ये दो आंसर बिल्कुल नहीं देना है. अगर ये सच भी हो तो भी नहीं देना है. Okay, the next question is, what should candidate do if they don't know any answer to the technical question during the interview? बहुत बार होता है, like there are round of interviews, HR, screening interview, technical. तो कभी कभार ऐसा होता है कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में या कुछ टेक्निकल स्किल के बारे में we don't know about that. So how did we उसको हम कैसे cope up करें कि हमारा वो positive impact जाए, that we are eager to learn something new? या या तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर नहीं आता है तो इट इज़ ओके टू से दैट आई डोंट नो, बट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, राइट? अगर उस क्वेश्चन की एकदम टेक्निकल लेवल या टेक्निकल डिटेल नहीं पता है, कुछ थ्योरेटिकली बता दीजिए ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि एटलीस्ट यू मेड एन अटेम्प्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? तो जितना आता है उतना बता दो, उसके अलावा बोल दो कि इसके अलावा मुझे नहीं पता है, आई विल रिसर्च अबाउट इट एंड डेफिनेटली लर्न मोर अबाउट इट. ऐसा करके उस क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हो. Okay. The last question and the most जो मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाता है, what are your salary expectations? और हमें इसका आंसर नहीं पता होता है, हम यहाँ पे ही थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जाते हैं, ज्यादा बता के कम बता के डेस्परेट दिख के. तो हाउ शुड वी गिव अ राइट आंसर जो एक अच्छे से फ्रेम्ड लगे और अच्छा लगे? सो इसके दो दो आंसर हो सकते हैं. एक तो आप रिक्रूटर या कंपनी के हाथ में छोड़ दें दैट वट एवर द कंपनी बेस्ट स्टैंडर्ड्स आर एंड वट एवर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर, आई एम ओके विद दैट. दैट इज़ वन, राइट? एंड ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेशर्स के पास कुछ ये चीज़ बोलने के लिए नहीं है कि मेरा देखो ये प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे 10 नहीं 15% हाइक मिलती है, राइट? तो फ्रेशर्स को तो सेफली यही आंसर देना चाहिए दैट वट एवर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर, आई एम ओके विद दैट. दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप सैलरी, आपका रीज़न सैलरी बहुत ज़्यादा है ये रोल ज्वाइन करने के लिए,
तो आपको रिसर्च करना चाहिए कि इस रोल में, लेट्स से अगर कोई डेटा एनालिस्ट रोल है तो उसकी मार्केट एवरेज क्या चल रही है, तो ये आपका रिसर्च का पार्ट बन जाता है, राइट। तो मार्केट एवरेज आप ये बोल सकते हैं दैट आई नो फॉर दिस रोल द मार्केट एवरेज सैलरी इज अराउंड 25,000 पर मंथ, सो आई एम ओके विद एनीथिंग 25 और मोर, बट एनीथिंग लेस देन दैट विल प्रॉब्ली नॉट वर्क फॉर मी। बस इतना बोल दीजिए। Definitely. Thank you so much, Gunjit, for sharing those valuable insight and practical knowledge with us. Your expertise has provided us with a comprehensive guide to prepare for an excellent in job interviews. Thank you to all our attendees. We hope you find this webinar enlightening and that you are now feeling more confident and equipped to tackle your next interview. We encourage you to apply these strategies which has been told by Ms. Trihan, and these strategies tips in your upcoming interview and to continue your honoring your skills. Your journey to career success is a continuous learning program, remember, and today's session is a significant step towards that. Thank you once again, Gunjit, and thank you to all our attendees. We look forward to see you at our next event. And if someone is unable to join the webinar, so they can go to our YouTube channel, Whiteboard Foundation, and there you will be get a screen recording or the recording of this session, and you can again go through all the queries and all the questions that has been discussed in this webinar. Thank you. Have a great day. Thank you.